नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6M and others, course Pedagogy of Civics. Students, today our session topic is need for measurement and evaluation in education. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. Let's see in English. The process of evaluation consists of the following three aspects. First is quantitative measurements, second is qualitative assessment, third is teacher's opinion. Let's see in detail one by one. First, quantitative measurement. We often do the quantitative measurement of the performance of students through tests. It usually is the case that more time is spent on teaching a unit than testing it. The achievement of the students usually depends on the nature of tests such as teacher-made tests, standardized tests, etc. But the achievement also depends on the physical and mental health of the student, the level of their preparation and motivation during the tests, the marks obtained by the students in different subjects in terminal examinations and expressed in percentage of marks obtained as the aggregate is an example of applying quantitative measurement. This kind of measurement provides information about the overall achievements level of pupils, but does not help us in understanding the individual performance of a child and difficulties faced by him or her. Therefore, quantitative measurement has its limitations and thus it needs to be supplemented by qualitative assessment. Second, qualitative assessment. The qualitative assessment description implies observation by teachers and records maintained by them pertaining to various facets of student personality and performance in the school. The systematic record of statement by teachers about the special achievement of exceptional ability in non-scholastic area or exceptional behavior of students is one of the isolation of the qualitative assessment description. Third is teacher's opinion. Teachers form opinion about the students on the basis of conclusions drawn by them from quantitative measures and a qualitative description of the behavior of students. The opinion of a teacher arrived at on the basis of qualitative and quantitative measurement gives a comprehensive pictures
of the student's progress. Thus, it is an evaluation in an informal setting, yet it conveys information about the student's performance on some vital issues. This session prepared by डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। लेट्स सी इन हिंदी। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, छात्राओं, आज का जो सेशन है वो है शिक्षा में मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 पहलू शामिल होते हैं। पहला मात्रात्मक माप, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन, तीसरा शिक्षकों की राय। तीनों को हम विस्तार से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है मात्रात्मक माप। हम अक्सर परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थियों के परीक्षण की मात्रात्मक माप करते हैं। यह आमतौर पर ऐसा मामला है कि एक इकाई को परीक्षण करने की तुलना में अधिक समय बिताया जाता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि आमतौर पर परीक्षणों की प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे शिक्षक द्वारा किए गए परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण आदि। लेकिन उपलब्धि छात्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उनकी तैयारी के स्तर और परीक्षणों के दौरान प्रेरणा पर भी निर्भर करती है। टर्मिनल परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और कुल अंकों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, जो मात्रात्मक माप को लागू करने का एक उदाहरण है। इस तरह के माप से विद्यार्थियों के मध्य समग्र उपलब्धि स्तर के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह हमें किसी बच्चे के व्यक्तिगत प्रदर्शन और उसके या उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने में मदद नहीं करता है। इसलिए मात्रात्मक माप की अपनी सीमाएं हैं और इस प्रकार इसे गुणात्मक मूल्यांकन द्वारा पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे गुणात्मक मूल्यांकन की। गुणात्मक मूल्यांकन विवरण का तात्पर्य है शिक्षकों द्वारा अवलोकन और विद्यालय में छात्र व्यक्तित्व और प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित रिकॉर्ड को बनाए रखना। शिक्षकों द्वारा गैर स्कॉलास्टिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धि या असाधारण क्षमता के बारे में शिक्षकों के बयान का व्यवस्थित रिकॉर्ड या गुणात्मक मूल्यांकन विवरण के उदाहरणों में से एक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है शिक्षकों की राय। शिक्षक मात्रात्मक उपायों और विद्यार्थियों के व्यवहार के गुणात्मक विवरण से उनके द्वारा लिए गए निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों के बारे में राय बनाते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक माप के आधार पर एक शिक्षक की राय विद्यार्थियों की प्रगति की एक व्यापक तस्वीर देती है। हालांकि यह एक अनौपचारिक सेटिंग में एक मूल्यांकन है, फिर भी यह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर छात्रों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है। तो आज का जो सेशन था वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 के द्वारा तैयार किया गया है और सेशन का नाम शिक्षा में मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता है, अर्थात नीड फॉर मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। लगातार वीडियो को देखते रहें, जिससे आपका जो सिलेबस है, आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। और देखिए, इन सभी वीडियो को देखने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो नोट डाउन करने पड़ेंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर सकें, क्योंकि हर लाइन में कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा रहता है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसका कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एग्ज़ामिनर कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी स्टाइल में उस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। बस यही है कि आपको अच्छे से मन से अपनी सेशन को कंप्लीट करना है और अच्छे से सुनकर उसकी तैयारी करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है।
ठीक है, धन्यवाद।